मैंने कहा बड़े बड़े अभी स्टॉलवर्ड्स आए, अच्छे अच्छे ऐसे लोग आए जिनको देखने का ही सबको मजा आता है। अब ऐसे में मुंबईकर का मन कैसे जीता जाए? एक भाषण दूंगा, शायद आपके मन में आएगा नहीं आएगा। सो दैट्स व्हाई वी क्रिएटेड दिस प्रेजेंटेशन। ओके, रेडी? चलो लेट्स गो। ये जो ब्रिज देख रहे हो आप, व्हाई वी पुट इट ऑन द ओपनिंग स्लाइड, दिस इज higher than the Eiffel Tower. And that is the direction in which we have to go. We cannot do incremental change. We should not be aiming at incremental movements. We have to look at what is the best in the world and then do better than that. That is our goal. So I'll start with railways, then move on to telecom, and then towards IT, okay? 800 passengers carried every year, 800 crore. 800 crore. आप कहोगे 140 है पॉपुलेशन, 800 कैसे हुए? बहुत लोग हैं जो एक से ज्यादा बार ट्रेवल करते हैं। 22,000 plus trains every day, 7,300 stations, massive network, 12 लाख एम्प्लॉय। सोचो जब अप्रेजल का सीजन आता है तो क्या हालत होती होगी मेरी एवरी ईयर, राइट? सो मैसिव 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 नेटवर्क। हाउ डू यू ट्रांसफॉर्म अ नेटवर्क ऑफ दिस साइज? हाउ डू यू ट्रांसफॉर्म एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्सिटी? हाउ डू यू एंश्योर दैट पीपल्स ड्रीम्स, पीपल्स एस्पिरेशंस, people's expectations from this organization change and they are met in an organization which is as complex as Indian Railways. This is where Prime Minister Modi ji put his entire focus and made significant changes in the last 8 years. I'll talk about some of those changes here. First and foremost is change the passenger experience. How do you change that? Start with railway stations. Every railway station is the first place where a passenger interacts with the railways. पहले जाता है बंदा पैसेंजर रेलवे स्टेशन में। क्या आपके सामने जो फोटो है, दिस इज रानी कमलापति रेलवे स्टेशन इन भोपाल। Totally transformed, totally changed, and we learned a lot out of this. एक आप normal building बनाते हो, normal building will not have those challenges which are faced by a railway station. Vibrations, ट्रेन की गड़गड़ाहट, sound, temperature difference, ट्रेन तेजी से जा रही है, slow जा रही है, कोल की ट्रेन जा रही है, पैसेंजर की ट्रेन जा रही है. It's very complex. Believe you me, it's really complex. I'm an engineer. I can vouch that it's really complex compared to even constructing a 50-story building is today a mechanized thing. Stations are difficult. So we learned from this. We learned from, what are the things that we learned? Create a roof plaza. और इसमें PM साहब का personal input रहा, because urban spaces में, and who would know better than Mumbai, urban spaces में जहाँ पे space की बहुत ज़्यादा किल्लत है, बहुत कमी रहती है, station is bang in the middle of a city. How do you create new space? How do you make sure that the station is able to combine both sides, join both sides of the city and integrate them rather than dividing them? तो ये रूफ प्लाजा का पहला एक्सपेरिमेंट हुआ. Then we created this Gandhinagar Capital Station. This tall building that you see here, this is right on the top of the tracks. आपकी जो tracks है, tracks के ऊपर ये बनी हुई है, right? So this is without asking for even 1 square inch extra space, this building got created. This again taught us many things. So this is where now we are going. Look at this place. What is this place? Guess? प्राइस किसके लिए है? दिल्ली रेलवे स्टेशन. चलो भाई, गिव हिम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. क्या नाम है आपका? मुखर्जी दादा के लिए. ग्रेट. दिस इज दिल्ली रेलवे स्टेशन, राइट? एंड यू से दैट आप ऐसे ही पिक्चर दिखा देते हो. नहीं साहब, इसका कंप्लीट डिजाइन कंप्लीट हो गया है. टेंडर डॉक्यूमेंट बन चुका है, टेंडर डॉक्यूमेंट निकल चुका है. 38 परमिशंस जो लेनी होती है, वो सारी की सारी परमिशंस ले ली है. फ्रॉम DDA, फ्रॉम दिल्ली पुलिस, फ्रॉम अर्बन आर्ट्स कमीशन, 50 जगह से आती है परमिशंस. यूटी पैक, उन सब से परमिशन ले ली है. और इसका टेंडर मार्च के सेकेंड वीक में अवार्ड होने वाला है. इमेजिन नाउ, दीज आर द 2 ग्लोब्स जो आप देख रहे हो ना, ये डोम और वो वाला डोम. These are on top of the tracks.
जो ट्रैक्स है ट्रैक के ऊपर है ये दोनों के दोनों डोम्स। इसके अंदर मैसिव रूफ प्लाजा इनसाइड, 4 floors ऑफ रूफ प्लाजा। एंड कितनी जमीन नई क्रिएट हो रही है, न्यू दिल्ली स्टेशन वाले जानेंगे तो 50 एकड़ न्यू स्पेस इज गेटिंग created inside the station. Imagine. That's the thought process with which railways is moving ahead, right? Look at this. कितना बड़ा fundamental change आता है when you have all your traffic which comes to the station and goes out of it is all on elevated roads. Completely elevated roads पे. Makes a phenomenal difference in the entire city's landscape. अहमदाबाद, कोई है यहाँ पे अहमदाबादी, गुजराती है कोई? केम छो? यहां नहीं पूछना चाहिए, यहां तो केवल कशा है ही पूछना चाहिए। कंप्लीटली न्यू वे ऑफ कंस्ट्रक्शन, टोटली मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। आपने जो येलो दिख रहे हैं ना, ये येलो सारे सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सारे येलो प्लेटफॉर्म्स हैं, राइट? इसके ऊपर पिलर्स लिए, पिलर्स के ऊपर एक फ्लोर बनाया, कंप्लीट एलिवेटेड रोड नेटवर्क बनाया, उसके ऊपर और फ्लोर लिया पिलर्स लेके, कंप्लीटली मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन। क्योंकि चैलेंज बिफोर अस इज इन आवर सेटअप वी कैन नॉट स्टॉप। अगर कोई दूसरी कंट्री होती है, हमारी नेबरिंग कंट्री, तो वो 3 साल के लिए सब कुछ बंद कर सकता है, कोई चूंचा नहीं करेगा। हमारे तो आप लोग एबीपी न्यूज में घंटी बजाओ हो जाएगा। तो कंप्लीटली एंड सब जगह कहीं ना कहीं हेरिटेज का यूज किया, राइट? दिस इज योर, कोई गेस करो भाई क्या है ये? प्राइज मिलेगा, बड़ी ताली। मोढेरा सन टेम्पल, राइट? मेरे लिए ताली बजा लो। ब्यूटीफुल स्टेशन, बहुत अच्छा, और खूब बड़ा सा अंदर रूफ प्लाजा। आमची मुंबई, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। इसका कंपटीशन किससे है बताओ जरा, कोई गेस करो। एक्सेलेंट, इनके लिए प्राइज बहुत जोरदार। उससे बेटर बनाना है, राइट? यस, हम लोगों ने कंपटीशन किया which is the most contemporary station when we look at छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। लंदन का जो किंग्स क्रॉस, लंदन सेंट्रल कहते हैं जिसको, दैट्स द स्टेशन विच इज कंटेम्परेरी टू दिस। उसकी डिजाइन हमने ली सब जगह से, और बेस्ट ऑफ द बेस्ट आर्किटेक्ट्स को लगाया, बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स को लगाया, और कहा कि यार देखो 4 साल के बाद में लोग लंदन से यहां आके इस स्टेशन को देखने आए, वैसा बनाना है। तो दे वर लाइक अच्छा, लेकिन जो डिजाइन बनाई है जबरदस्त, चक्कास। बहुत ही अच्छी डिजाइन बनी, इतनी अच्छी डिजाइन बनाई है। और कंप्लीट इसका टेंडर कंप्लीट हो चुका है, इसका भी मिडिल ऑफ द मार्च टेंडर अलॉट होगा, एंड एवरी अथॉरिटी इन मुंबई हैज गिवन इट्स परमिशन, एंड आई थैंक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एंड डीसीएम साहब, दे आर पर्सनली मॉनिटरिंग डे बाय डे इसका कंप्लीट। और दूसरी बात, हमारे जीएम साहब बैठे हैं यहाँ पे, एक भी गाड़ी आपको रोकने के लिए मना, कोई गाड़ी कैंसिल नहीं होगी, राइट? इतना बड़ा चैलेंज कैसे करेंगे, लेकिन कर रहे, लगे हुए सबके सब इसमें। ह्यूज स्पेस विल गेट क्रिएटेड, मूवमेंट ऑफ पीपल विल बिकम वेरी स्मूथ, टोटली न्यू वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। मैंने इस स्टेशन में आधे टाइम तो लगेगा कि यार यहीं बैठ के थोड़ी देर गपशप कर लेते हैं, राइट? और खासकर जब जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए, हमारे जैसे। lots of space getting created, lots and lots of space getting created. This is the night view of CSMT. अच्छा है, मजा आया देखने में? जब बनेगा तब क्या मजा आएगा सोचो। अभी काम चालू होने वाला है, राइट? गुड। एंड ऐसा नहीं कि केवल मुंबई और दिल्ली और अहमदाबाद, नहीं, पूरे देश भर में कंप्लीट पीएम साहब ने टारगेट दिया है कि देश में हमारे रेलवे पैसेंजर्स का जो एक्सपीरियंस है वो टोटली ट्रांसफॉर्म होना चाहिए। चेन्नई अलम्बुर, एगमोर लिखते हैं उसको, बोलते हैं अलम्बुर। कानपुर, जयपुर, जयपुर तो हेरिटेज है, राइट?
ग्वालियर, अगेन देखो ये पुराना स्टेशन है जो एग्जिस्टिंग है अभी, इसको पूरे को प्रिजर्व करते हुए हाउ डू यू क्रिएट अ टोटली न्यू स्ट्रक्चर, राइट? इसको प्रिजर्व भी करना है, हेरिटेज को प्रिजर्व भी करना है। पीएम साहब कहते हैं विकास भी और विरासत भी, विरासत भी विकास भी, सो वी हैव टू कंबाइन बोथ। तो ऐसा करके इसका डिजाइन बना। और ये प्रयागराज, इसमें जो चैलेंज है वो चैलेंज दुनिया के किसी स्टेशन में नहीं हो सकता। कुंभ के टाइम में एक दिन में 1 करोड़ लोग एक साथ, 1 करोड़ एक साथ। तो इसकी जो डिजाइनिंग की ना, उन ट्रांसपोर्ट प्लानर्स को सैल्यूट है बॉस। माने उन्होंने किस तरह से इसमें पैसेंजर मूवमेंट क्रिएट किया है, इट्स गोइंग टू बी अ हार्वर्ड केस स्टडी पक्का। माने हार्वर्ड नहीं होगा, MIT केस स्टडी होगा इंजीनियरिंग का। सो it's a really great design which has been done in this, and I feel really proud about this because इसको डिजाइन करना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट था। इसका भी काम चालू हो गया ऑलरेडी। सूरत, why I show this slide is, पीएम साहब ने हमेशा एक चीज कही कि जितने भी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है उनका एकदम सीमलेस इंटीग्रेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई स्टेशन से उतरे उसके बाद में ढूंढते रहो लिफ्ट किधर है, ढूंढते रहो मेट्रो किधर आएगी, ढूंढते रहो बस किधर है। इनका सीमलेस इंटीग्रेशन हो, एब्सोल्युटली सीमलेस इंटीग्रेशन हो, अच्छी साइनेजेस हो, क्लियरली पता चल जाए कि ये मेट्रो है, इस तरफ से कट 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 चल के चल गए, इधर से बस मिलेगी तो कट 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 चले गए बस की तरफ, राइट? इट हैज टू बी दैट काइंड ऑफ इंटीग्रेशन। ऐसा पीएम साहब ने, मैं आपको बताऊं बॉस, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। जब करीब 50 के आसपास स्टेशन की डिजाइन हम लेके गए, करीब करीब 2.5 घंटे का प्रेजेंटेशन पीएम साहब ने देखा। 2.5 घंटे के प्रेजेंटेशन के बाद में कोई जनरली बॉस का ये होता है कि इफ ही लाइक्स इट, इफ ही इज गुड विद इट, देन हिल से आगे बढ़ो। उस दिन एकदम हम लोग लाइक 2.5 घंटे के प्रेजेंटेशन, अच्छा हम लोग तो सोच रहे थे क्या काम करके गए, तो काम लेके गए, लेकिन बॉस ने कहा नहीं, ही वॉज नॉट एट ऑल हैप्पी विद इट। हम पूरा एकदम मुंह लटका के बाहर निकले। 11 o'clock in the night I get a call from him, बोलते अश्विनी ये तुम्हारी डिजाइन आज के लिए अच्छी है, लेकिन मुझे डिजाइन चाहिए 50 साल आगे की सोच के बनाओ। That's the vision with which he is working. उन्होंने कहा सब में रूफ प्लाजा लाओ, बिकॉज अर्बन स्पेस बहुत डिफिकल्ट है, नई अर्बन स्पेस क्रिएट करना बहुत डिफिकल्ट है। एंड रेलवे के साथ तो उनका इमोशनल कनेक्ट है, ही हैज बीन, एक बचपन से रेलवे से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि देखो स्टेशन जहां है, आधा शहर उधर है, आधा शहर इधर है, इन दोनों शहर के हिस्सों को जोड़ने का तरीका बनाओ। तो वी वर लाइक, आई मीन ऐसी फाइन चीजें, अर्बन स्पेस क्रिएट करो, जोड़ने का तरीका बनाओ। और क्या स्टेशन केवल पैसेंजर्स के लिए होना चाहिए? बताओ, क्या स्टेशन केवल पैसेंजर्स के लिए होना चाहिए? नहीं, स्टेशन तो पूरे शहर का होना चाहिए। हम लोगों ने जितनी डिजाइनें की थी वो केवल पैसेंजर सेंट्रिक थी। पीएम साहब ने कहा नहीं, स्टेशन पूरे शहर की अमानत है, शहर का सेंटर है, इसको डिजाइन करो सिटी सेंटर की तरह। आंखें खुली, सारी जितनी पुरानी डिजाइनें थी डाली श्रेडर में, और वापस नए टीम को, इस बार हम लोग टाउन प्लानर्स की टीम को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। पहले केवल आर्किटेक्ट्स को और इंजीनियर्स को दिया था, इस बार टाउन प्लानर्स को लेके आए टीम में, और उनको लेके जब डिजाइन्स की तब सब जगह इस तरह की डिजाइन बनी जिसमें बस स्टैंड है, मेट्रो है, आपका ऑटो और कार की ट्रैवलिंग है, मल्टी मॉडल, एक मल्टी लेवल कार पार्क है। तो एक तरीके से कंप्लीट सभी मोड्स का इंटीग्रेशन जहां पे पॉसिबल हो उस तरह से सारे स्टेशंस का डिजाइन हुआ। बेंगलुरु, विशाखापट्टनम, सफदरजंग दिल्ली में बन रहा है ये, चंडीगढ़, दिल्ली कैंट पूरा, दिल्ली कैंट का अलग ही चैलेंज था। इसमें आपके पास आने जाने का रास्ता नहीं है, तो इसको कंप्लीटली चारों तरफ से एलिवेटेड रोड से एनसर्कल किया, चारों तरफ से एलिवेटेड रोड से इसको एनसर्कल किया, जैसे कि आपको नीचे जाना ही नहीं पड़ेगा, नीचे जाने की जगह ही नहीं है, तो आपको ऊपर हवा में क्रिएट करनी पड़ेगी जमीन। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही चैलेंजिंग था ये प्रोजेक्ट। फिर ऐसा नहीं कि बड़े बड़े शहर, न्यू जलपाईगुड़ी, सब जगह पूरे देश भर में, जम्मू तवी, अगेन हमारी हेरिटेज के एलिमेंट्स को हमने यूज किया इसमें।
रामेश्वरम, छोटे शहर बड़े शहर, ये तो रिपोर्ट कार्ड पीएम साहब का ऐसा है ना कि यहां तक काम करके लेके जाओ, बोलते यहां तक करो, यहां तक काम करके लेके जाते यहां तक करो। तो अब तो हम ऊपर ही देखते हैं। इज रियली लाइक होना भी चाहिए, तभी जाके देश आगे बढ़ता है, वरना अगर हम सेटिस्फाई हो जाए, छोटी छोटी चीजों से सेटिस्फाई हो जाए तो देश आगे नहीं बढ़ पाता। ही ऑलवेज मेक्स अस थिंक बिगर देन व्हाट वी हैव एवर थॉट। मतलब जहां हमारी वो अपनी फिल्म में एक डायलॉग था ना कहीं पे, जहां लाइन जहां हमारी थॉट प्रोसेस खत्म होती है, वहां से बॉस की थॉट प्रोसेस चालू होती है। आई विल कम टू वंदे भारत। ये एक ट्रेन है जिस ट्रेन ने दुनिया में हलचल मचा ली है। आप में से कितने लोग वंदे भारत में ट्रैवल किए अभी तक? कैसा एक्सपीरियंस है, आप बताओ। वंडरफुल एक्सपीरियंस। झटके लगे कहीं? बिल्कुल नहीं, वेरी स्मूथ। नॉइज लेवल कितना था? पता ही नहीं चलता। एक्सीलेंट, ताली बजाओ यार इनके लिए सबसे। पीएम साहब ने 2017 में बोला कि अपने को वर्ल्ड क्लास ट्रेन बनानी है, लानी है इंडिया में। देखो पूरा कॉन्टेक्स्ट देखो, वेरी वेल थॉट थ्रू स्ट्रैटेजी है। पैसेंजर एक्सपीरियंस को चेंज करना है, स्टेशंस, ट्रेन्स, सेफ्टी, ये तीन बड़ी चीज होती है, राइट। स्टेशन के बारे में बात की अपन ने, अभी हम ट्रेन की बात करेंगे, उसके बाद में सेफ्टी की बात करेंगे, करेक्ट। तो पहला हमारे ऑफिसर्स का था टिकट कटाया, पहुंचे जर्मनी, पहुंचे जापान, पहुंचे फ्रांस, और बड़े बड़े प्रेजेंटेशंस, बड़े बड़े ब्रोशर्स लेके आ गए कि चलो साहब ये ट्रेन सबसे अच्छी है, ये लेके आएंगे, ये इंपोर्ट करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। गए प्रेजेंटेशन, तब मैं नहीं था, प्रेजेंटेशंस करने गए, पीएम साहब ने कहा नहीं भाई नहीं चलेगा, ये आपको ट्रेन इंडिया में ही डिजाइन करनी पड़ेगी और हमारे ही लोग डिजाइन करें, हमारे ही लोग उसको मैन्युफैक्चर करें। चैलेंज, इट्स अ वेरी बिग चैलेंज, बिकॉज दुनिया में केवल 8 कंट्रीज ऐसी है आज की तारीख में जिन लोगों ने 160 kmph से ऊपर की ट्रेन्स बनाई है। ओनली 8 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। आसान नहीं है। वंस यू मूव बियॉन्ड 120 किलोमीटर्स, सारे पैरामीटर्स चेंज हो जाते हैं, सारे के सारे पैरामीटर्स एकदम कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। 150 तक 120 तक कोई भी कर देता है डिजाइन।